एक सपना लेके हर बंदा इंडिया से यहाँ पे आता है, अपना परिवार यहाँ पे खुश रहे, बच्चे का फ्यूचर सेट करे, बट ये नहीं हो पा रहा। Why did you take that step कि आपने सुसाइड करने की क्यों सोचा उस टाइम पे? I was blaming myself कि कुछ हो तो रहा नहीं है मेरे से अपनी फैमिली के लिए। He got confirmed with cancer. Mon, how did you go through with these emotional things? दुख और सुख का साथी है जी, तो फिर सपोर्ट तो करनी है, बिल्कुल है ना। जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसमें मैन के अंदर डाला जाता है कि यू आर द वन हु गोना रन द फैमिली। वेलकम ऑन कैंप पॉडकास्ट। मैं निर्जरी पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम जो हमने एपिसोड किया था मेंटल मैन हेल्थ के ऊपर, वो लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और हमें बहुत अच्छे रिव्यू दिए। उसी का एग्जाम्पल आज हम लेके आए हैं। हमारे साथ है पैरी और मॉन, जो हम लोगों को पूरी स्टोरी बताने वाला है यहाँ पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में कि उनके साथ क्या हुआ और क्यों हम यहाँ पे मैन के ऊपर ये हेल्थ दिखाने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पैरी और मैन कैंप पॉडकास्ट में। पैरी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। तो पैरी का हम बैकग्राउंड दे देते हैं। वो यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। एक सपना लेके हर बंदा इंडिया से यहाँ पे आता है, जो उन्होंने भी ये सपना लेके आए थे कि अपना परिवार यहाँ पे खुश रहे, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, जो उनके दो बच्चे, टू बॉयज़ राइट, और दो बच्चे का फ्यूचर सेट करे, बट ये नहीं हो पा रहा। जानते हैं क्यों? पैरी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ कि आप जब इंडिया से आए हो, कितने साल पहले आए हो, एंड व्हाट द जर्नी लुक्स लाइक। हम दोनों यहाँ पे इकट्ठे आए थे अबाउट क्लोज टू 18-20 years ago, एंड हमारा जैसे सबका फोकस होता है कि फॉर अ बेटर लाइफ, यस, better opportunities. जी। And we came into this country, and because we both were on really good jobs in India as well, and सबका यही सपना होता है कि like वहाँ जाके भी like you're gonna get like the similar kind of jobs and everything. Of course, yes. But it didn't happen, and soon we realized we have to start from scratch, and we did. And we struggled. We both struggled, and we both, at the end, we achieved like where we wanted to see ourselves. With the same thing, unfortunately, about 12 years ago, 11 years ago, I got diagnosed with a very rare disorder called TTP. And TTP is a blood disorder which your own immune system starts killing you. I was very scared. Obviously, my wife got really scared as well. But at that time also, she helped me stand up to fight with this disease. And we got through that. Ji. But unfortunately, like, after 2 years, it happened again, misdiagnosed. And on top of that, we found out that I might be having a cancer as well. Ji. That was a shock, and I was very scared that I don't know what's going to happen. I'm going to die, or I had 2 kids at that time. The question in my head that, am I going to pass this cancer to my kids? Because some cancers are passed down from bloodlines and all. And, genetics, yes. And all. Didn't told her for 3 months that this is the report because I was so scared. But after 3 months when I told her, first she got angry. She wanted to kill me. But then, she supported me and talked to the doctors and everything, and calmed me down, calmed herself as well.
then life goes on, treatments and everything and all, still standing strong, kuch nahi hota, it happens, and we'll get through it. Don't worry about that. Telling myself, she's telling me this. But unfortunately, the relapse scenario didn't stop. It kept on happening. The duration between one relapse to another relapse getting shorter and shorter. First time when it happened, the steroid treatment worked. Second time, steroids plus plasma transfusion worked. Third time it didn't work. They had to introduce a new one. Can't remember the name of that treatment. काफी trials जैसे because TTP is a rare blood disorder. जी. And he got confirmed with cancer in the past 2 years as well. तो पहले था कि he might have cancer, but then it got confirmed last 2 years. So जो TTP alert हुआ 10-12 साल से in his body, तो why the doctor haven't taken any step कि TTP जब alert हो रहा है तो हम step क्यों नहीं ले रहे? वो ले रहे थे. अच्छा, still that was Okay, so there is only treatment. Yeah. There is no cure. Okay. In some patients, it might happen only once in their lifetime, and it will never happen again. Maybe once So in you 8 got to years. understand this disease is कि ऐसे नहीं है कि कोई बाहर से कुछ या तो मैं कुछ जैसे होता है ना कि शराब ज़्यादा पी रहे हैं जी, या ड्रग्स हैं या कुछ और ऐसा कुछ हो रहा है जी, उसकी वजह से हो गया. तो मेरा इस कैंसर का इस चीज से ब्लड डिसऑर्डर से कोई लेना देना नहीं. so there is no cause of this. हाँ, तो मेरा मोटे मोटे में बताऊं कि मेरा ओन इम्यून सिस्टम, जैसे आपको कोल्ड होता है, जी, ठीक है, तो आपको बुखार चढ़ता है, जी, तो दैट मीन्स जब बुखार चढ़ता है कि लाइक आपका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया से लड़ रहा है, उनको खत्म कर रहा है. बट इन मेरे केस में क्या होता है कि वो बैक्टीरिया से लड़ता है मेरा इम्यून सिस्टम, बट मेरे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको भी मारना शुरू कर देता है. oh, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि लाइक जैसे कहते हैं ना कि रोग सिस्टम हो गया है, जो भी सामने आएगा उसको मार देगा वो. जी, तो ऐसे हो जाता है मेरा. तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लाइक इफ यू डोंट एक्ट ऑन इट क्विकली you can eventually die, but the worst things are you can go into vegetable state, brain hemorrhage, you can have kidney failures, you can have liver failures, lung damage or XYZ. बहुत कुछ हो सकता है. So that is for me is worse than death. Luckily, I should have died about 6 or 7 times already. But each time, I don't know, with the God grace or with my wife's prayers, I survived. One treatment didn't work, then some other treatment gonna work, or something or the other is going on and is happening. But the problem is also this, like each time it happens, it takes away something from me. Like the functioning of my body is deteriorating day by day by day. And if I talk about it now, I have difficulty doing long walks. Long walks, for me, long walk could be 50 meters or 100 meters. oh, really? It's going to kill me, like after that. It's pain going to be in my legs, in my arms, and my muscles and everything and all. They're going to wreck it. As a child, I used to love walking and all. Even before the marriage, like I knew her. And कई बार ये होता था कि लाइक आई यूज्ड टू वर्क इन धर्मपुर, तो कभी मैं स्टेशन पे आता था, मैं इसको बताता नहीं था. तो स्टेशन से इसका घर था ऑलमोस्ट अबाउट 2.5-3-4 किलोमीटर के करीब था. आई यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू एंजॉय वॉकिंग दैट. 3 to 4 kilometers is a long walk, I'm sure. Yeah. And I used to enjoy that. But now I can't. And even for me playing with kids and all, it's very hard. Mera bada ladka, chota ladka, they very much into soccer.
I try to play with them. I can't 2 or 3 minutes football बाहर खेल के मेरी बस हो जाती है. It's because of the the system drainage body of- function. Yes, and there was an interesting fact like there was happened a couple of months ago. I complained about a little bit of memory issues or headaches or this and that. And remember, Isaac said like there's a minute degradation of some part of my brain as well, ब्रेन सेल्स के अंदर. brain cells के अंदर. Okay. So very minor at the moment, but like and that is because of the TTP, Right. because it happened so many times, you know. राइट. पेरी, जब ये आपका कैंसर अलर्ट हुआ कि टीटीपी था ऑलरेडी एंड देन कैंसर आपके रिपोर्ट में आया, आई नो मॉन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पूरी फैमिली के लिए ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स कैंसर के बारे में कोई रिसर्च नहीं करता अपनी फैमिली में, ना हम ध्यान देते अपनी हेल्थ के ऊपर. एंड दैट इज़ वाई अभी भी 170,000 केसेस इन ऑस्ट्रेलिया पर ईयर कैंसर अलर्ट हो रहा है, और उसमें कई सारी जान जाती भी है, कई सारे लोग वापस से मतलब जीना शुरू कर देते हैं अच्छे से. बट व्हेन ही टोल्ड यू आफ्टर 3 months यू नेवर डिस्कस विथ योर वाइफ कि आई हैव अ कैंसर, तो आपका रिएक्शन ऑफ कोर्स थोड़ा अग्रेसिव होगा, बिकॉज कैंसर इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग दैट डाइजेस्टेबल. तो मॉन, हाउ डिड यू गो थ्रू विद दिस इमोशनल थिंग्स? निजरी, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे कल ही पेरी ने ये बात की हो मेरे से, बिकॉज वी आर लिविंग इट एवरी डे. जी. वो गई नहीं ना चीज़, वो और वर्स हो रही है. जिस टाइम पे बताया था तो मेरे को पहले तो बहुत गुस्सा चढ़ा. मेरे को गुस्सा आया कि इतनी बड़ी बात मेरे से छुपा ली. एंड ये एक बहुत मेजर बात है मेन की. जी. वो हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं बातें. एग्जैक्टली राइट. And that causes mental health issues as well. And उसके बाद फिर मैंने सोचा कि okay, this has to be done. तो मैं क्या करती थी, मैं गैराज के अंदर जाके गाड़ी में बैठ के रो लेती थी कि जब मैं अंदर आऊंगी घर पे तो पेरी को पता ना चले कि मैं रोई हूँ. And that energy, you don't want to give that energy to No, Perry. because I had to support him, ना. Of course. So दुख और सुख का साथी है जी. तो फिर सपोर्ट तो करनी है. बिल्कुल. है ना. I was बिल्कुल. thinking the same thing. हाँ. That's why I did it. Perry, as Mon discussed me before, you had that mental health and psychology part आप जो जा चुके हो उस फेज से, तो ऑफ कोर्स हम मैन को यहाँ पे सोसाइटी में वो लाना चाहेंगे कि आप जैसे मॉन को कुछ नहीं बताया आपने, ना कुछ बताते होते थे पहले, राइट? मॉन, यू वर डूइंग फैंटास्टिक बिफोर. जो आपका बिजनेस चल रहा था यहाँ पे, ड्राइविंग स्कूल चल रही थी, दैट वाज ऑल ओवर इन मेलबर्न एंड दैट वाज वेरी फेमस. थैंक यू. गोइंग बैक टू दैट पार्ट, जब वो बिजनेस चल रहा था, ऑल ऑफ द सडन कोविड हिट हुआ, एंड देन कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस लॉसेस में गए. And I think at the same time, Perry entered into your business when he was doing the graphic design before, and then Perry entered into your business. And वहाँ पे कुछ हुआ था जो हम आपसे सुनना चाहेंगे, मॉन, की कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है यहाँ से, और मेंटल मैन हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है. जी. पेरी ने वर्क किया है एज अ ग्राफिक डिजाइनर. He was a professional in it, and he was, I think, working for 13.5 years Fuji Xerox के साथ. जी. And फिर जैसे ही first wave of COVID आई, he got redundant. Okay. And Perry को, या फिर if we take all men, they feel very insecure अगर उनके पास job ना हो कोई. It is a big cause of insecurity. तो मैंने पेरी को देखा, like he was very upset कि मेरे को redundant कर दिया. He was not at all happy. And immediately then I told him, that's okay. You do this course and you become a driving instructor, and I'll like help you learn what the things are to do with the students, and then let's start that. So he did the course, and uske baad he started doing the business with me, and he became a driving instructor.
तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की जर्नी, जो Xerox से ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, यू वर एंजॉयिंग दैट पार्ट? At the start, I was very scared. कि एक सीट पे आप बैठे हो, आपके पास स्टीयरिंग नहीं है, जस्ट पेडल्स हैं, इन दूसरी साइड गाड़ी चला रहा है. How you gonna control that thing, and आपका reaction quick होएगा कि नहीं होएगा if something happens. And unfortunately, the first client she gave me never driven. मैं कुछ हेडता होता, मैंने कभी टोको साइकिल भी नहीं चलाई हुई. That was the first experience you had. इसने मेरे को ऐसे सीखते हैं, Of course. challenges. कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, नो जा जी लो अपनी जिंदगी. एंड वो 1 घंटे का लेसन था. आई वुड से वो 1 घंटा मेरे लिए 10 घंटों के बराबर था. मैं बार बार घड़ी देखी, मैं कहा टाइम क्यों नहीं हो रहा, मैं कहा कब लेसन खत्म करूं, कब जाऊं. एंड माय बॉडी वाज एकिंग बिकॉज़ एक स्ट्रेस भी हो गया था ना, काफी स्ट्रेस हो जाता है ना, बॉडी के अंदर आ जाता है. पेडल्स भी चल रहे हैं इस पैर से, एंड एवरीथिंग एंड ऑल. But after that, I started enjoying it because कई students मेरे पास ऐसे आए थे कि जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, जो उन्होंने मतलब कि हाथ जोड़ लिए थे कि हम तो कभी गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं जी. तो जब उन्होंने गाड़ी सीख ली, and they still remember me, and that was a very proud moment for me, that because of me, someone got a license. Yeah, it for them is not just a license, that's a freedom. Yes. Where females जो अपने हस्बैंड के ऊपर थे कि लाइक वो आएंगे तो वो लेके जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो गए ना बिल्कुल ही, which is good. Yeah, because dependent तो of course वो रहते ही हैं. खासकर जो इंडिया से लोग आते हैं मॉन, of course वो जो डिपेंडेंट होते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, या तो फिर अपने, या तो जॉब नहीं मिलती उनको स्टार्टिंग में, या तो कुछ of course they want to buy a car. तो वो ड्रीम सबका होता है. एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब कि आप उनको सिखा रहे हो और कम से कम वो लाइसेंस ले पा रहे हैं. दे वर गोइंग इनटू दिस. तो लाइसेंस, जो कोविड के दौरान पैरी आपका एक्सीडेंट हुआ एंड फाइनेंशियली जो क्राइसिस आए थे, मॉन हाउ यू डेल्ट विद द फाइनेंशियल क्राइसिस जब वो आए, एंड व्हाट पैरी डिड ऑन एट द टाइम? टू बी ऑनेस्ट, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखे हैं ना जी, इन द लास्ट 4 years, मैं कहूँगी कि वो कोई भी ना देखे. लिटरली मेरे पास $20 से भी कम होते थे अकाउंट में जी, एंड बच्चे हैं 2 कि खाना कैसे आएगा, क्या करेंगे. तो देयर वर लॉट ऑफ गुड पीपल जिन्होंने सपोर्ट किया इन आवर कम्युनिटी. गुरुद्वारे साहिब से खाना आता था जी, बहुत सपोर्ट मिली. प्रीतम जी हैं जो ही इज़ अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर एज वेल, उन्होंने बहुत सपोर्ट की. वो हमेशा गुरुद्वारे साहिब से खाना भिजवाते थे, क्योंकि आप खुल के नहीं बता सकते सबको कि आपके अकाउंट में $20 है. अब हम बात कर सकते हैं बिकॉज नाउ वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ. हाँ, वो फिटनेस तड़का कनिका ने भी हेल्प की थी जब उसका फिटनेस तड़का चल रहा था. तो शी यूज्ड टू सेंड लाइक फूड, तो बहुत सपोर्ट किए जी. आई एम श्योर कम्युनिटी हैज बीन वंडरफुल. यस, एट दैट कोविड टाइम पे कम्युनिटी बहुत आगे आके सपोर्ट कर रही थी. एंड देयर वर कपल ऑफ पीपल कि गुरुद्वारा साहब से जैसे खाना आ रहा था, पीपल आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, जो घर घर जाके टिफिन पहुंचाते थे. जी. तो इन दैट सिचुएशन ऑफ कोर्स सबके लिए कई बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं वो, एंड वन ऑफ यू. तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस में आपने बताया था मुझे ऑफ स्क्रीन ऑफ कोर्स कि पैरी जो एक्सीडेंट हुए हैं, पैरी के आई थिंक 5 और 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं. 6 एक्सीडेंट हुए हैं निजरी. एंड पैरी का जो कॉन्फिडेंस था, एक्सीडेंट्स बेशक स्टूडेंट्स की तरफ से हुए जी, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर मतलब कि लर्निंग है ना. तो कॉन्फिडेंस पैरी का ना गिरता गया, क्योंकि एक तरफ बॉडी के अंदर डिजीज है, ठीक है, दूसरी तरफ ही स्टिल ट्राइज टू डू एवरीथिंग एज अ नॉर्मल पर्सन, जो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनके लिए. क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है पैरी की अब.
ठीक है ना। तो उससे क्या होता था कि चलो इंश्योरेंस थी, गाड़ी जाती थी ठीक होने, बट अगर उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में गाड़ी ठीक हो रही है, ठीक है ना, कोई ड्राइव टेस्ट है, वो तो फिर कैसे लेके जाए हम? You can't do this. तो हमें फिर रेंट करनी पड़ती थी फ्रॉम अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर द कार। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारी कार का हाथ बैठा होता है, ठीक है ना, उसी में सीख रहे हैं, उसी में बहुत मुश्किल था। वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ दीज एक्सीडेंट्स, राइट। एंड प्लस सब कुछ प्लान था फाइनेंशियली। कोविड वाज नॉट प्लान्ड, नो, डेफिनेटली नॉट। हिज कैंसर वाज नॉट प्लान्ड, यस, एवरीथिंग एल्स वाज प्लान्ड, राइट। तो ये दो चीजें हमारे हाथ में थी ही नहीं, राइट। So 2 years back, I have become a full-time carer. I had to close the business. क्योंकि फिर बच्चों का ध्यान कौन करेगा, पेरी का कौन करेगा, जी, घर को कौन देखेगा, जी। And he can't work क्योंकि he has lot of issues with even concentrating now. Right. So we are on Centrelink. So you both are not working. No. And community से support. And community से support. राइट, राइट। पेरी, जो एक्सीडेंट हुए आपके, यू वर थिंकिंग कि मैं मोन को नहीं बताऊंगा कि मैं ये इंश्योरेंस के पैसे आ रहे हैं, कि जो भी हो रहा है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वाई डिड यू टेक दैट स्टेप कि आपने सुसाइड करने की क्यों सोचा उस टाइम पे? एंड इट्स अ बिगेस्ट स्टेप आई वुड से। मेरे को तो डेट भी याद है। रियली? यस। The problem happened, कि जो हेल्थ का इशू है, that wasn't a new issue at that time, मतलब कि वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, एंड उसके साथ एडिशंस हो ही जा रही हैं कि सबसे पहले ITP हुआ, फिर TTP हो गया, फिर एनगस आ गया, फिर मल्टीपल माइलोमा हो गया, और फिर फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, एंड सो ऑन। तो मैं वो वाली बैटल तो लड़ ही रहा था जी, एंड उसके साथ साथ जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है उससे ज़्यादा ही मैं कर रहा था। फिर एक्सीडेंट्स मतलब कि इन अ रो काफ़ी हो गए। ऐसा नहीं है कि लाइक मेरी या मेरे स्टूडेंट्स की ही गलती से हुए, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट हुआ था कि आई वाज गिविंग अ लेसन टू वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, लाइटों पे वेट कर रहे हैं स्लिप रोड पे, एंड पीछे से ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया। So that's all of a sudden. That's all of a sudden, ठीक है। एंड अगर किसी नॉर्मल बंदे का एक्सीडेंट हुआ तो वो तो बंदा कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, एंड डिटेल एक्सचेंज करवाओ, इंश्योरेंस के पास जाओ, गाड़ी रिपेयर के लिए जाएगी, आपको नई गाड़ी मिल जाएगी। बट इन आर केस के नॉर्मल गाड़ी नहीं चाहिए होती है, गाड़ी में डबल पेडल चाहिए होते हैं, तो उसका स्ट्रेस हो जाता है कि वो गाड़ी कहाँ से अरेंज होएगी, एंड उसका किराया ज़्यादा होता है, तो वो कैसे होएगा। फिर जितने दिन गाड़ी नहीं मिलती है, आपके ऑलरेडी बुकड हैं लेसन, टेस्ट बुक हैं, उनका क्या होएगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट्स मतलब कि विद द स्पैन ऑफ 6 months काफ़ी होने शुरू हो गए हैं नो, एंड छोटे टाइम के अंदर Oh, within 6 months. हाँ जी। तो जो मेरा ऑलरेडी मैं इतना कुछ मतलब कि बैटल में हूँ, तो जो मेरा लास्ट एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मैं थोड़ा बॉक्सटन हो गया था, तो गुस्सा भी बहुत हो गया था कि और क्या करूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, कितना कर सकता कर लिया, दिस एंड दैट एंड ऑल, एंड आई कांट डू दिस एनीमोर, ठीक है ना। एंड लकीली आई हैड माय इंश्योरेंस अबाउट लाइक 15-16 years ago, लाइफ इंश्योरेंस। ओके। तो मतलब कि कैलकुलेशन दिमाग में शुरू हो जाती है ना मैन के ठीक है कि लाइक अगर मैं मर भी जाता हूँ तो इंश्योरेंस है, they can move on, and plus कैंसर भी है, मैंने तो मर ही जाना है, ये वो है, 4 साल बाद 5 साल बाद क्या आज ही हो जाए तो it's much better. And then I OD'd on my medications. I had heart medications and
30 medicines खा ली हार्ट वाली, ओवरडोज. यस, जस्ट टू दैट, वो जोन देने के लिए कि फाइनेंशियली जब मैं मर जाऊंगा तो मैं जो it पैसे will आएंगे help us and we will be financially secure. I was blaming myself कि कुछ हो तो रहा नहीं है मेरे से अपनी फैमिली के लिए, कि this is what my job is, to provide to my family, and I can't even do that. And that information I would like to pass to our audience because of course जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसमें मैन के अंदर इतना कुछ मतलब डाला जाता है कि you are the one who gonna run the family. And I don't blame Perry for this. It's our society. Conditioning कर देते हैं. Exactly. Did you आपने मोन को बताया था कि when you had the medicines? 3 दिन के बाद. मैं वेट कर And how did you go for these 3 days? मैं हर रोज वेट करता, आज कुछ होएगा, आज कुछ होएगा. मंडे रात को खाई, मुझे कुछ नहीं पता चला. ही वॉज लाइक चोकिंग या वॉमिटिंग की आवाज मेरे को आई, तो मैं उठ गई रात को. तो मैंने कहा यू ओके पेरी? तो वो कहते कि हाँ तू सो जा, मैं ठीक हूँ. तो मैं सो गई. तो मंडे को वेट करी, कुछ नहीं हुआ. ट्यूसडे को वेट किया, कुछ नहीं हुआ. वेंसडे को वेट किया, कुछ नहीं हुआ. तो थर्सडे को मुझे बताया. And how was your reaction? जमीन जैसे कहते हैं ना हम कि पैरों से निकल जाती है, मेरा ये हाल था निजरी. मैंने सीधा फोन उठाया अपने जीपी को. मैंने जीपी को मोबाइल पे कॉल किया. राइट. उन्होंने भी अचानक उठा लिया. उनको मैंने मैसेज डाला पेरी का कि पेरी ने क्या किया है, तो उन्होंने फोन फटाफट उठा लिया. बिकॉज यू कांट कॉल जीपीज नॉर्मली ऑन मोबाइल, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग. यस. तो मैंने उनको बताया एंड आई सेड ही नीड्स हेल्प. कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता. एग्जैक्टली. कितना प्रेशर रहा, यहाँ सोचना भी नहीं चाहता मरने के लिए. ठीक है ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो उन्होंने अपनी तरफ से फोन किया. कैट टीम यहाँ पे होती है. जब भी इफ यू आर in a situation where you can harm yourself or you can harm anybody else around you, तो कैट टीम है जो हर मतलब कि जैसे वेस्टर्न एरिया में सारे एरियाज में है. सो दे देन इंटरवीन एंड दे टेक केयर ऑफ हिम. दैट इज हिज मेंटल हेल्थ journey where it started from. Right. And how did you go with this journey? At the start, in my mind, I was stubborn. In fact, उससे पहले भी, क्योंकि ये जर्नी डिप्रेशन की वहां से नहीं स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी हो चुकी थी. बट इट वाज अ वेरी माइनर लेवल के जैसे होता है ना कि हाँ थोड़ा सा है, इग्नोर कर दिया ना कि लाइक दिखाना नहीं है, स्माइल करते रहना. एंड अगर कोई पूछे हाउ आर यू, आप फिट एंड फाइन जी, एंड हाउ यू गोइंग, बहुत बढ़िया जी. एंड बताना नहीं है. एंड खुद से ही अंदर अंदर सिनेरियोज बनते रहते हैं एंड नॉट टेलिंग एनीवन. एंड वो हो गया. फिर तो उसका रिजल्ट था कि जब मेरा हुआ ये कि मैं मतलब कि ब्लास्ट हो गया और मैंने ये अटेम्प्ट किया. हेल्प नहीं ली ना. करेक्ट. जब डिप्रेशन डायग्नोज हो गया था, डॉक्टर्स ने पुश किया काउंसलिंग लो. एक सेशन अटेंड किया, भाग गए. दूसरा सेशन अटेंड किया, भाग गए. क्या होएगा फिर? सी वेयर इट रीच्ड. उस पॉइंट तक क्यों पहुंचना? I think, Mon, this is very personal thing. I would say, yes, you can say that why, but जिस पे बीत रही है, only that person can explain. Yeah. और why ये हुआ, ये हम जानते हैं next episode में. Thank you for watching. Thank you. Thank you.